सर हम्म। सर आपको कोई आइडिया है क्या अपने कॉलेज कब तक खुलेंगे अभी? नहीं, इसका तो आइडिया नहीं है अभी, किसी को नहीं क्या है। करा, न्यूज़पेपर में आता रहता है ना आजकल कि भाई नवंबर में खुलेंगे कॉलेज, इसलिए। खुल सकता है, हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ खुल जाए, विल सी। जब कॉलेज वाले बता देंगे तभी आपको और हमें सबको पता लगेगा। अच्छा। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के दो सिंपल न्यूमेरिकल्स अपन कर चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था कि इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट the velocity of two moving objects. Let us say a particle at some point A is moving with a velocity of VA, and some other particle at point B is moving with a velocity VB. Then you say that the velocity of particle B with respect to A, this can also be simply represented by VBA. Some textbooks represent it as VBA, implying velocity of B with respect to A. तो जो सेकंड सफिक्स है, यानी कि B ऑब्लिक A लिखो चाहे BA लिखो, द सेकंड सफिक्स इज द वन दैट इज स्टॉप्ड इन टाइम, यानी कि जिसकी वेलोसिटी को जीरो मानते हुए फिर उसके रेफरेंस में दूसरे की वेलोसिटी ली जाती है, उसको दूसरी पोजीशन पे लिखा जाता है। सो VBA is never equal to VAB। ये भी इसी तरीके से आपको पता लग गया, क्योंकि इन दोनों के अंदर पूरी कहानी चेंज हो जाती है। इफ यू राइट VB ऑब्लिक A, दैट मीन्स यू आर स्टॉपिंग A and you are checking the velocity of B with respect to A. If you write VAB or VA oblique B, that means you are stopping B and you are checking the velocity of A with respect to B. तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जाती है। But nevertheless, since velocities are vectors, we conveniently say that whenever you say that V of B with respect to A, you are talking about the vector, and it can be simply given as the vector difference of absolute velocity of B minus absolute velocity of A. Okay, इसको उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हो that velocity of B in the absolute sense can be given as the sum of these two vectors. पहले वाली एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि the relative velocity of B with respect to A is nothing but the vector sum। पहले डिफरेंस लिया था, अब आप वेक्टर सम की तरह ले सकते हैं, द वेक्टर सम ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी एंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए टेकन इन रिवर्स और नेगेटिव ऑफ वी ए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट क्लास you saw an example in which we made use of this relationship to find the relative velocity of one ship with respect to another। तो इसको एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जिससे कि आप वापस से ट्रैक पे आ जाएं। We had a case something like this, that some ship was moving like this. So ship A was moving in this direction and ship B was moving in this direction. And it was asked of you, find the relative velocity of ship A with respect to B. According to formula, you can simply put it as VA minus VB. But again, we can express it as VA plus minus of VB. That means since all these entities are vectors, looking at this expression, you come to the conclusion that VAB is a vector which is obtained as the vector sum of these two vectors.
So all you have to do is take velocity vector of A, reverse the velocity vector of B, and then take the resultant of these two. So looking at this, what we did was, instead of VB, we replaced it. This was the original direction of VB. From this, if you take an exactly opposite vector of the same magnitude, you can say that this is minus VB. सर सर ये पहले वाली कंडीशन को अपन ने क्यों नहीं किया, इसको पीछे की तरफ क्यों लिया? क्योंकि अपन को वेक्टर सम लेने की आदत है। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, आप इनका रिजल्टेंट ले लो, तो ये आपको करना आता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब ही ये होता है, लेट अस से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, एंड इफ यू आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट, that is written as a vector plus b vector. It is never written as a vector minus b vector. ठीक है। अब आपको अगर मैं सिर्फ इसी फॉर्म में इसको रहने दूं, इस ओरिजिनल फॉर्म में रहने दूं, तो फिर आप निकालोगे क्या वेक्टर डायग्राम में जाकर के, समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करूं प्लस ऑफ माइनस वीबी, तो ये प्लस साइन आने से मुझे ये पता लगा कि अब जो ये वी ए बी जो है ये रिजल्टेंट बन गया है। फॉर्म में रहेगा तो ये रिजल्टेंट नहीं निकलेगा, तो अपन इसको रिजल्टेंट निकाल करके उसी को आंसर डिक्लेयर करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी एक्सप्रेस इट एज प्लस ऑफ माइनस वीबी। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। सो वंस अगेन कमिंग बैक टू ट्रैक, we took the minus vector of VB, and now we have two vectors VA and minus VB vector, and all you have to do is you simply find the resultant of these two. So this has to go somewhere along this side, but once again you don't have to make use of detailed vector notations to find the resultant. A more convenient way of finding the resultant is already in your hands. So if one vector is like this, say VA, another vector is like this, say minus VB, and now if you know the angle between these, let us say this is theta 1 and let us say this is theta 2, then all you have to do is to find the resultant. Find the summation of all horizontal velocities, take the square of it. Find the summation of all the vertical velocities and take the square of it, and find the under root. This will directly give you the magnitude of resultant. And in order to find your direction of the resultant, you simply take theta is equal to tan inverse of the summation of the vertical components divided by summation of the horizontal components. Now this will depend whether you are taking VH upon VV or VV upon VH. This will depend upon whether you are taking theta from the vertical axis or you are taking theta from the horizontal axis. If you are taking theta with the horizontal axis, then theta is given by this expression. Instead, if you are taking theta with the vertical axis, then this will be reverted. Then you will have to write VH upon VB. Anyway, this sort of question was accomplished in the last class. We did सर सर इसमें वो आपने नेगेटिव वाला बताया था, तो उस वाले से भी तो कर सकते हैं। किससे? तो बताया था ना, वेक्टर सम की जगह वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी तो ले सकते हैं। अरे भाई, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लोगे तो ये जो काम कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट अगर आप किसी दो वेक्टर का निकालते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होता रिजल्टेंट कभी भी। और कोई तरीका तो होगा ना उसको सोल्व करने का? फिर सबसे आसान तरीका यही है, और कोई तरीका फिर आप नाक को उल्टा तरह से क्यों पकड़ना चाहते हो?
सबसे आसान तरीका है ये, इससे शॉर्टेस्ट रूट है ही नहीं। आपके पास दूसरा तरीका जस्ट यही है कि आप एक बार दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के फॉर्म में उसको ले आओ। तो अगर आप ये रेजोल्यूशन का काम नहीं करना चाहते तो फिर आप इन दोनों के बीच का एंगल पता कर लो, टोटल एंगल, और उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। दैट इज अनदर वे। ये एक दूसरा तरीका और है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मेरा तो ओपिनियन ये है कि सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज टू रिजॉल्व देम इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड टेक दिस कैलकुलेशन। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ठीक है। अच्छा। ओके, नाउ let us move on and read another question. See, one thing you have to remember, whenever you see a question of relative velocity, you must draw the vector diagram. रिलेटिव वेलोसिटी के कई कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोट एंड रिवर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, विंड एंड एयरक्राफ्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मैन वॉकिंग इन अ रेन टाइप क्वेश्चन आते हैं। बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस रिलेटिव वेलोसिटी में बन सकते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं कि आपको 12th क्लास के लेवल का क्वेश्चन कराएंगे तो शायद आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे। We will see some questions like that. So your conceptual understanding of relative velocity has to be very very solid. It might be surprising to you कि velocity किसी चीज की रिलेटिव लेते हैं तो उसका फॉर्मूला यहीं स्टार्ट होता है और यहीं खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला है ही नहीं रिलेटिव वेलोसिटी का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड इट एंड्स हियर। ये देखो, आपको जो थ्योरी दी गई थी वो यहां से स्टार्ट हुई, भाई कुल मिलाकर के बस रिजल्ट इतना सही है रिलेटिव वेलोसिटी का। वी बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू वी बी माइनस बी ए बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ए। बस इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल एग्जांपल स्टार्ट हो गए। तो इसमें थ्योरी है ही नहीं रिलेटिव वेलोसिटी में, बट द क्वेश्चंस कैन बी रियली ट्रिकी एंड पुट यू इन अ वेरी बैड सिचुएशन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वेक्टर मैकेनिक्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो अपन आज यही कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे टिपिकल एग्जांपल्स लेकर के वी विल बी बेसिकली लर्निंग हाउ टू मेक द करेक्ट वेक्टर डायग्राम for every problem, and if you are able to make the correct vector diagram then the remaining task is very easy. तो relative velocity की problems में जैसा मैंने आपको बताया, the only hurdle that you have to overcome is to draw the correct vector diagram. किस वेलोसिटी को रिलेटिव लेना है, किस वेलोसिटी को एब्सोल्यूट लेना है, इस चीज की समझ आपको कुछ प्रॉब्लम्स को करने के बाद आएगी। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। कुर्मी का एग्जांपल है, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन चेक द टेक्स्ट बुक लेटर ऑन, बट वी विल सॉल्व इट हियर। अ ट्रेन इज मूविंग at 48 kilometer per hour and a person sitting in it, so the person is in the train, feels rain coming down at 60 degree to the vertical. However, a person standing in a field outside feels the rain to be vertical. Find the actual velocity of the rain. ठीक है? Let us understand the question. ये किसका माइक चालू है? Please put your mic off. अतुल. Okay. The velocity of the train is given. Now, before we embark on this particular question, let me explain another stuff to you. Look at this one. This is the only relationship. 1 minute.
Please hold on, I am just correcting some problem here. Can you see the screen now? Yes, sir. Okay. Now, as I was saying, one concept is too much important from the perspective of relative velocity. The concept is like this. When you say that particle B has a velocity Vb, particle A has a velocity Va, and particle B has a relative velocity with respect to A as Vb oblique A. इसके मतलब क्या है? सबसे पहले तो once again let us draw a simple diagram to represent Va, Vb in any random direction. Let us choose them as any random direction. ठीक है? So first assume that Va is the velocity of a car A and Vb is the velocity of car B. Now what is the actual meaning of Vb, Va and V oblique A? If there is a person who is standing on the road and he is seeing both the cars moving, this person is not moving, he is simply standing there. And if he looks at the first car and he observes with what velocity it is moving, then that velocity is Va, or the absolute velocity of the car. Okay? It is never the velocity observed by the person sitting inside car A. Obviously, if car A is moving, then somebody has to drive it. So if somebody asks you, is Va the velocity as observed by the driver of car A? No. It is the velocity of car A as observed by a person who is standing outside on the road. So this Va is the stationary perspective as seen by a person not sitting in the car. Similarly, what is Vb? Vb is once again the velocity of car B as observed by a person standing outside the car. It is never the velocity of car B as experienced by the person driving or sitting inside the car. Never. ठीक है? तो एक आदमी कार चला रहा हो तो आप उससे कभी भी उसकी स्पीड नहीं पूछ सकते. देयर इज ऑलवेज रिलेटिव मोशन. स्पीड किससे पूछोगे आप कि भाई बी कार की स्पीड बताओ? उसकी स्पीड सिर्फ वो आदमी बता सकता है जो बाहर खड़ा है. अंदर बैठा हुआ आदमी कभी नहीं बोल सकता. अंदर बैठा हुआ आदमी हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी एक्सपीरियंस करता है. सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वी बी ऑब्लिक. ये क्या है? ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. तो अब देखता हूं कि आप लोगों ने स्कूल में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी समझी है इन योर 11th and 12th classes, whether in mathematics or in physics. You must have dealt with the concept of relative velocity. So now tell me, what is the meaning of v b oblique a? पहला ऑप्शन है, बाहर खड़ा आदमी ए और बी को दोनों को देखता है और एक जजमेंट पास करता है कि बी ए के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से चल रही है. पहला ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये है, कार ए में बैठा आदमी कार बी की तरफ देखता है और उसको जो आभास होता है कि बी किस स्पीड से चल रही है और किस दिशा में चल रही है, वो है वी बी ऑब्लिक ए. और तीसरा ऑप्शन है, कार बी में बैठा आदमी कार ए को देखता है और वो अपना आभास आपको व्यक्त करता है कि कार ए कितनी स्पीड से चल रही है. आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस, व्हिच डू यू थिंक represents the actual concept of B oblique A? बताओ. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ए कार में बैठा आदमी अगर बी कार को देखता है तो उसको क्या आभास होता है कि बी किससे चल रहा है. अब देखो, ए कार में बैठे आदमी को रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फील होती है
क्योंकि ए कार की स्पीड उसको फील ही नहीं हो रही। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अ पर्सन सिटिंग इनसाइड कार ए, इफ ही लुक्स एट द स्टीयरिंग व्हील, क्या वो चल रही है? नहीं चल रही। क्या उसके पैरों के पास में जो पेडल है, जो सीट जिस पे बैठा है, उसके पीछे के जो पैसेंजर हैं, वो कोई भी नहीं चल रहे। उसको चलने का या चाल का आभास तभी होगा जब वो खिड़की से बाहर देखेगा। वो भी सिर्फ एक आभास ही है। सो अ पर्सन सिटिंग इनसाइड कार ए डज नॉट फील द वेलोसिटी ऑफ कार ए इटसेल्फ। उसको वेलोसिटी कब फील होगी? जब बाहर उसको कोई दूसरी कार चलती हुई नजर आएगी। उसको पता ही नहीं है कि उसकी खुद की कार चल रही है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अदरवाइज अब वैसे तो थियोरेटिकली आप ये बार्गेन कर सकते हो कि सर कैसे नहीं पता लगता, हम कार चलाते हैं तो हमें पता नहीं लगता क्या? बिल्कुल पता लगता है। बट इफ यू लुक एट द इनसाइड ऑफ योर कार इज नॉट मूविंग। दैट इज द पॉइंट। ठीक है। नाउ इफ यू आर सिटिंग इनसाइड कार ए, देन एसेंशियली यू आर फीलिंग that velocity of A is zero. And while you are feeling the velocity of your own car as zero, you look at some other moving object, then the velocity of the other moving object as seen by you is nothing but the absolute velocity minus your own velocity. And that is what brings you to B oblique A. ठीक है। अब अपन इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आगे अपनी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। And let us try to understand which velocity given here is relative, which one is absolute. ठीक है। A train is moving at 48 किलोमीटर पर आवर and a person is sitting in it. अब मेरे को सबसे पहले ये बताओ, 48 किलोमीटर पर आवर को क्या मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन डिक्लेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? I want to do this, but you have to tell me whether this is correct or not. यस सर। इट इज करेक्ट। ट्रेन इज मूविंग एट दिस स्पीड, ये कौन बोल रहा है? अ थर्ड पर्सन इज टेलिंग यू। ठीक है। पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन डज नॉट नो कि ट्रेन की स्पीड क्या है। आप खुद ही देख लो, अगर आपको स्पीडोमीटर नहीं दिखाएं तो कार पे हो, बाइक पे हो, ट्रेन पे हो, अगर आपको ट्रेन के अंदर आकर के कोई पूछे कि भैया ट्रेन चल रही है क्या? हाँ चल तो रही है, हिल डुल रही है, तो चली रही होगी। ठीक है, बताओ स्पीड कितनी है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक अर्लियर। इनसाइड a moving object you never know what is the velocity, and if the object does not move at all, अगर वो थोड़ा हिल डुल नहीं रहे हो, तो हो सकता है आदमी को पता भी नहीं लगे कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। So 48 किलोमीटर पर आवर is the velocity as seen by a person who is standing outside the train. स्टेशन पे खड़े खड़े अगर वो देखे कि ट्रेन निकल रही है उसके सामने से, तो उसको 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखेगी। So this is the absolute velocity. So you can say that the velocity of train is 48 kilometer per hour. One data is successfully recorded. Now let us move on. Now a person sitting in the train feels the rain coming down at 60 degree to the vertical. ठीक है। अब देखो, अब मैं वेक्टर डायग्राम्स पे जा रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अपन एक डायरेक्शन में ले लेते हैं, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। किसी भी डायरेक्शन में ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं वो नॉर्थ जा रही है, साउथ जा रही है, ईस्ट जा रही है, नथिंग। इट इज जस्ट मूविंग। एंड वेन एवर यू गेट अ सिंपल क्वेश्चन कि वो चल रही है कोई गाड़ी, तो उसको हॉरिजॉन्टल ले लो। ठीक है। एंड वेदर यू टेक इट टू द लेफ्ट और राइट, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। सो लेट अस से दैट ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड विद अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो एक वेक्टर तो बना दिया अपन ने। नाउ द नेक्स्ट वेक्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ इज the person sitting in the train feels the rain coming down at 60 degree to the vertical. तो 60 डिग्री टू द वर्टिकल। अब इसके अंदर एक आदमी बैठा है, इसको क्या फील होता है कि वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री पे आपकी रेन आ रही है। सो ही इज फीलिंग दिस। अब ये बताओ कि ट्रेन के अंदर बैठे आदमी बारिश की बूंदों को अपने हाथों पे फील कर रहा है। खिड़की से बाहर हाथ डाल दिया होगा बंदे ने। तो अब ये बताओ, ये जो वेक्टर है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है? ये वेक्टर
दोनों The कह सकते हैं velocity सर। of rain with respect to train. दोनों कह नहीं सकते आप, दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ द रेन। वेलोसिटी ऑफ द रेन VRT sir. कहना है तो आपको ट्रेन से बाहर खड़े आदमी से पूछना पड़ेगा, जो चुपचाप खड़ा है रास्ते पे, उससे पूछो कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, तब उसको जो एंगल और वेलोसिटी दिखेगी वो है एक्चुअल वी आर। जैसा मैंने कहा, कभी भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करें, वी ए, वी बी, वी ऑफ रेन, वी ऑफ ट्रेन, वी ऑफ बोट, this is always this always has to be taken as the perspective of a person standing outside the system। कभी भी कोई सवार आदमी है, चाहे बोट पे बैठा हो, चाहे चल रहा हो, चाहे ट्रेन पे बैठा हो, बस पे बैठा हो, साइकिल पे, बाइक पे, कार में, कोई भी सवार आदमी की अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे तो वो हमेशा रिलेटिव है। ये आपको बिल्कुल मन में अच्छी तरह से गांठ बांध के रख लेनी है इसको। So it is never VR, because what is the statement here? The person sitting in it feels the rain coming down at 60 degree। तो जो आदमी ट्रेन में बैठा है उससे पूछा गया है कि भैया रेन की एंगल क्या है, तो वो देख के बता रहा है कि 60 डिग्री पे दिख रही है मुझे। तो ये तो रिलेटिव ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर हो गई क्या आपको कि वाई दिस इज नॉट वी आर एंड वी आर ऑब्लिक टी? यस सर। क्योंकि ट्रेन में बैठे व्यक्ति से पूछा है तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में हो गया। रेन से थोड़ी पूछ रहे हो आप, ट्रेन पे बैठे आदमी से पूछ रहे हो, तो ट्रेन पे बैठे आदमी को ट्रेन की वेलोसिटी तो जीरो लग रही है, तो इसीलिए आर ओब्लिक टी है, टी ओब्लिक आर भी नहीं है। ये भी अभी कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये आर ओब्लिक टी क्यों है और टी ओब्लिक आर क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर टी ओब्लिक आर होगा तो ये क्वेश्चन आपने क्या बारिश से पूछा क्या कि भाई बारिश तू बता ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है? नो, you ask the person sitting inside the train, so if the perspective if of the train, then train's velocity is made zero to check the velocity of rain, so it is v r oblique t। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया है तो लेट अस से कि दिस वेलोसिटी इज v of rain as seen by a person sitting inside the train, or v r oblique t। दो वेक्टर आपने बना लिए, ठीक है, इनको ज्वाइन नहीं किया है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। आप चाहो तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ करके ये वेक्टर डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो कि भाई हमें पता नहीं कि किधर ज्वाइन करना है, वी डोंट नो, सो आई विल सिंपली मेक इट लाइक दिस। एक तो मैंने ले लिया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर। दूसरा बिल्कुल अलग से एक डायग्राम बना लेता हूं मैं कि भाई ट्रेन में बैठे आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लाया और उसने बोला कि मेरे को वर्टिकल से 60 डिग्री पे आती हुई दिखाई दे रही है बारिश। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ये दो बिल्कुल ही अलग अलग वेक्टर बना लिए, इनका आपस में कोई नाता रिश्ता नहीं। बट नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। अब क्या करेंगे इस केस में, नाउ यू ब्रिंग द टू वेक्टर्स क्लोज टू ईच अदर। हाउ डू यू ब्रिंग इट? यू नो that velocity of rain with respect to train must have been vr minus vt। now all of them are vectors। ये ऊपर का वेक्टर आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, you can simply ignore this and simply write it as follows। just put it in your mind that these are all vectors। ठीक है, तो वी आर माइनस वी टी ही वी आर अपॉन टी होता है, एक ही फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का। सो दैट मीन्स वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी आर ऑब्लिक टी प्लस वी टी। ये होगा ही होगा। ठीक है, अब आपको रिलेशन मिल गया कि दो वेक्टर आपके हाथ में थे, एक तो है वी टी और एक वेक्टर है वी आर ऑब्लिक टी। अब इन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऐसे लगाओ जिससे कि वी आर इज इक्वल टू वी आर ओब्लिक टी प्लस वी टी मिले। यहां पर रिलेशन लिख देता हूं, वी आर क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आपको पता है कि दिस इज द वेक्टर सम ऑफ वी आर बाई टी प्लस वी टी। हाउ डू यू पुट इट इन ट्राइंगल लॉ फॉर्म? ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर है ए, ये ले लो,
और दूसरा वेक्टर है बी, चलो ये ले लो। और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मांग रहे हो तो पहले तो ए को और बी को ऐसे अरेंज करो जिससे कि ए का हेड और बी का टेल कनेक्ट हो जाए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इसके ट्रायंगल के कंप्लीशन से मिलेगा। और ऑर्डर कौन सा लोगे? रिवर्स ऑर्डर लोगे। अब ये देखो, ए यों गया, बी यों आया, और कायदे से ऑर्डर में यों घूमना चाहिए, यानी कि ये बनना चाहिए वेक्टर। तो रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब हो गया? रिवर्स ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो कायदे से ऑर्डर चल रहा है यों, उसका उल्टा ले लो, यानी कि ड्रॉ द वेक्टर लाइक दिस, then this will represent the resultant, and this resultant is nothing but vectorially the sum of a and b। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, ये ट्राइंगल लॉ का जो लॉजिक है इसको यहां पर अप्लाई कर दो आप। तो बस लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई इट। आपको पता है कि वी आर इज द रिजल्टेंट, वी आर ऑब्लिक टी इज लेट अस से वेक्टर ए, एंड वी टी इज लेट अस से वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट ही प्लस के फॉर्म में आता है, तो ए और बी वेक्टर का प्लस करना है। अब ये आपके वेक्टर रहे, ये तो वी टी रहा, ये वी आर बाई टी रहा, यू हैव टू ऐड देम। सो व्हाट शुड आई डू? आई विल सिंपली से कि मैं वी आर ओब्लिक टी को तो यूं ले लेता हूं, और इसकी हेड से कनेक्ट करते हुए वी टी बना देता हूं। अब इसका जो रिवर्स ऑर्डर में बनेगा ये वी आर होगा। बस ये देखो, ऑर्डर में ये दोनों थे, ये यों गया, फिर यहां से यों आया, कायदे से यों जाना चाहिए था, लेकिन रिवर्स ऑर्डर लोगे तो दिस मस्ट बी योर वी आर। दिस इज द लॉजिक। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस फिगर से वी आर को फाइंड करना है। कैन यू डू दिस? दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। वी आर कैसे फाइंड करेंगे? सर आपने एक कंडीशन पढ़ी नहीं है सर क्वेश्चन में, एक कंडीशन और दे रखी है। और क्या है, देखें क्या छूट गया मेरे से। एक हाँ, यस पर्सन स्टैंड में। yes yes and a person sitting in it, acha, however a person standing on the field outside feels the rain to be vertical। okay yes, thank you। ये एक चीज अपन से मिस हो वी गई आर थी। अपन को ये भी बोला कि एक आदमी जो बाहर खड़ा है उसको रेन बिल्कुल सीधे आती हुई दिखती है। तो एक कंडीशन और करने से आपकी ये जो वेक्टर डायग्राम है ये थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई। ये कैसे मॉडिफाई हो गई? आपको ये पता लग गया कि ये वी आर वेक्टर जो है ये एग्जैक्टली ऊपर से नीचे को आ रही है। तो अब अपन ये जो एंगल ले रहे थे ये आपका खत्म हो जाएगा। सो यू कैन मॉडिफाई दिस ट्राइंगल एज दिस। वी आर आपको पता लग गया कि परफेक्टली परपेंडिकुलर नीचे को आ रही है, ये हो गया वी आर। ट्राइंगल लॉ तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा। दिस इज वी आर ओब्लिक टी एंड दिस इज वी टी। अब देखो, ये तो हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। क्या आप इससे वी आर निकाल सकते हो क्या? क्योंकि वी टी आपको 48 दे रखी है, इट इज ऑलरेडी गिवन एज यस 48। सर। अब तो आ जाएगा आराम से। क्या निकालोगे, क्या रिलेशन है इसका बताओ वी आर का? सर tan थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी टी अपॉन वी आर। ओके, तो वी आर निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? थीटा को 60 मान लूं तो tan 60 कितना हो गया बताओ? वी टी अपॉन वी आर। वी टी वी अपॉन वी, टी अपॉन वी आर। या फिर मैं कह सकता हूं 48 अपॉन वी आर होगा। और माय आंसर इज वी आर इज इक्वल टू 48 अपॉन tan 60 डिग्रीज। ये मेरा आंसर है। इसको जरा कैलकुलेट करके चेक करके बता दो सही है कि नहीं है।
जस्ट फाइंड आउट, यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी 48 बाई tan 60, क्या ये आंसर आ रहा है क्या? सर 27.7 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब एक काम करते हैं, इससे पहले कि अपन बोट वाली प्रॉब्लम पे चलें और कॉम्प्लिकेटेड, वो उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये क्वेश्चन करो आप, डू दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर ओन कैलकुलेटर्स, नोटबुक्स, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। ये जो रेड में लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द वन दैट वी हैव अकम्प्लिश्ड। अब की बार सारे डेटा अपने आप लो, वेक्टर डायग्राम बनाओ, सारी कंडीशंस भी पढ़ लो। जैसा मेरे से एक कंडीशन पहले मिस हो गई थी, आप मिस मत करो। ये है वो कंडीशन, इफ रेन इज एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउन। फेल हो गया, एक बार और कर लो। Please make use of all the available information and check whether you get this answer or not. It is exactly the same type of question, but I want you to do without any help. यस सर, आ रही है सर, 34.64 आ रहा है। आ गया आंसर? अब अपन चलते हैं, लेट अस गो टू अ न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो चीज है ये नोट कर लो, ये मैंने आपके नोट्स में पहले नहीं दे रखा था, आई एडेड इट yesterday only. Just note down that after completing this lecture, आज के लेक्चर के बाद आपको खुरमी की बुक में से एग्जाम्पल 19.3 पहले आप लोग अपने आप ट्राई करें, एंड इफ यू आर अनेबल टू डू इट, लुक एट द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर है जो अभी अपन ने यूज किया है, ठीक है, बट इट इज अ लिटिल बिट मोर टफ। अभी तो अपन ने सीधे सीधे एक सिंपल ऐसा ट्राइंगल बना लिया था, दिस इज द ट्राइंगल दैट यू गॉट, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, सो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके आरटीयू में आने की ज्यादा संभावना है, इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि साइक्लिस्ट या राइडर और रेन की जो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उसमें इट इज मोर लाइकली दैट इतना टफनेस तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कैसे अपन रिलेटिव वेलोसिटी के वेक्टर्स बनाते हैं, तो अब इस एग्जांपल को पढ़ के आई टोटली बिलीव दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट इफ समहाउ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि सर ये हमें समझ में नहीं आया पढ़ के भी, देन वी विल टेक इट अप इन द क्लास बुक, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, सॉल्यूशन इसका पूरा गिवन है, खुरमी की बुक में जाए और इसको नोट कर लो, आपके नोट्स में मैंने पहले नहीं दे रखा, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, खुरमी एग्जाम्पल 19.3, ये लिख लो अभी। सर स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ, क्या हुआ? ऐसे कह रहा हूँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। ओके, नाउ लेट अस गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर एंड बोट। अब ये जितनी रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि a little bit of difficulty is more in understanding a river boat type problems. ऐसा क्यों, ये बताता हूं मैं आपको, why it is a little bit different from other problems and why it is a little bit more difficult, ठीक है। एक रिवर है, उसके अंदर अपन रिवर की वेलोसिटी is generally given, sometimes it is asked of you, ठीक है, a river is flowing like this and now there is a boatman, the boat can go in any direction, वो रिवर के उल्टा चल सकता है, यों जा सकता है, यों जा सकता है। अब जनरली अपन इसमें भी तीन टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इन्हीं तीनों वेक्टर्स के साथ में अपन गेम खेलते हैं,
ठीक है, लेकिन अब इसमें एक एसेंशियल डिफरेंस है, देयर इज एन एसेंशियल डिफरेंस इन द सेंस सर दैट, हाँ सर रिवर के रेस्पेक्ट में कैसे होगी बोट की? क्यों, रिवर के रेस्पेक्ट में हो सकती है बोट की, मैं अभी समझा रहा हूं, एक बार सुन तो लो आप, सुन लो आप एक बार, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड ही इज लुकिंग एट द रिवर फ्लोइंग, तो इस आदमी से पूछ करके जो आंसर मिला कि भैया आप बताओ कि रिवर की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज द करेक्ट वी आर। सिमिलरली अगर इस आदमी से यह पूछा जाए कि एक बोट रिवर पे चल रही है, you ask the person to look at the boat, not the person who is driving the boat, you ask the person who is standing on the river banks कि तुम देख के बताओ कि ये जो बोट की वेलोसिटी है वो किस दिशा में है और कितनी गति से जा रही है, देन दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर बीबी। नाउ यू आस्क मी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। दिस is the velocity experienced by the person sitting in the boat। अब अगर आप बोट पे एक पैसेंजर बैठा है और अगर आप उस पैसेंजर से ये पूछें कि आपकी बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में कितनी है, या फिर इससे भी बेहतर ये आंसर होगा कि एक आदमी, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, यू माइट फाइंड इट अ लिटिल बिट फनी, क्योंकि आर बाद में आ रहा है, तो बेसिकली आप ये रिवर से पूछ रहे हो क्वेश्चन, नॉट द पर्सन सिटिंग इन द बोट। रिवर से आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि रिवर तो एक लिविंग पर्सन है नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एन आंसर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट अ पर्सन इन द रिवर। ठीक है, मान लेते हैं वो लाइफ जैकेट वगैरह पहन करके रिवर में तैर रहा है। अब रिवर जिस वेलोसिटी से चल रही होगी, ऑब्वियसली वो आदमी भी उसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। सो द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन हु इज स्विमिंग इन द रिवर and not moving his legs and hands will have the same velocity as that of the river, and now he sees that a boat is passing from nearby, and then you ask this person, चिल्ला के यहां से पूछ लो, अरे भैया तू बता कितनी वेलोसिटी है इस बोट की। तो ये आदमी रिवर के साथ साथ बह रहा है और बहते हुए एक बोट को जाते हुए देख रहा है, तब इसको जो बोट की वेलोसिटी नजर आएगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर। इसको एक थोड़ा सा और आसान तरीका है, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट इट इज इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। v ऑफ बी आर यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कैसे कंसिडर करोगे? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर is the velocity as observed by the person steering the boat। क्योंकि आपके कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बोटमैन को किस दिशा में बोट ले जानी चाहिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। उसका आंसर क्या होगा कि बोटमैन को बोट किस दिशा में ले जानी चाहिए? वो वी बी नहीं है, वो वी बी ऑब्लिक आर है, ठीक है। सो कंसिडर दैट देयर इज अ बोट, this is the river and currently the boat is going in this direction। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी मैंने स्क्रीन गलत दिखा रखी है। सी, this is the flow of the river, so velocity of river is in this direction, and a person standing inside the boat who is driving the boat। ठीक है, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसने व्हील को पकड़ रखा है और ये बोट को ड्राइव कर रहा है। तो ये जो बोट की जो चोंच है, फ्रंट का जो चोंच है, इस आदमी ने इस चोंच को जिस दिशा में कर रखा है वो वेक्टर बी बी ऑब्लिक आर है। दिस इज हाउ इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड इजी टू टेक द वेक्टर डायग्राम इन प्रॉब्लम्स ऑफ बोट एंड रिवर। ठीक है, ये जो ट्रिक्स बता रहा हूं इससे आपका काम आसान हो जाएगा।
सो ऑलवेज रिमेंबर कि बोट वाली प्रॉब्लम में वी बी ऑब्लिक आर क्या है, इट इज बेटर रिमेंबर्ड एज द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन स्टीयरिंग द बोट। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति को ये करने के लिए, वो करने के लिए कितनी स्पीड से बोट चलानी चाहिए, तो वो वीबीआर की बात कर रहा है। वो वीबी कतई भी नहीं है। वीबी क्या चीज है? एज ऑलरेडी टोल्ड यू, वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम द शोर, यानी कि नदी के किनारे पे खड़े होके अगर कोई आदमी बोट को देखे तो उसको जो बोट की डायरेक्शन और वेलोसिटी नजर आ रही है, दैट इज वीबी। ठीक है, अब इस बात को सुनते हुए क्या मैं ये कह सकता हूं, अब मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट, बट यू शुड अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, आई एम सेइंग कि एक आदमी किनारे पे खड़े होकर के बोट की वेलोसिटी देखता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसको जो वेलोसिटी बोट की दिखेगी वो रिवर की वेलोसिटी और बोट और रिवर की रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्टेंट है? इन अदर वर्ड्स, मैथमेटिकली कैन आई से दिस? यस सर, क्योंकि वो वीबी है। ये सच है या गलत है, ये बताओ आप। यस सर। ठीक है, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम which is obtained to cross when the person steers the boat exactly perpendicular to the river velocity? ठीक है, यानी कि आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बोट को नाव चलाने वाला आदमी कैसे भी ले जा सकता है। अब देखो इसकी कॉम्प्लिकेशन को समझो आप। बोट चलाने वाला आदमी यहां से इधर पहुंचना चाहता है, इस ऑपोजिट एंड पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, सो इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव? अगर वो बोट को इधर को चलाता है तो रिवर की वेलोसिटी उसको एक्चुअली इधर को जाने नहीं देगी। वो क्या करेगी? उसको थोड़ा सा आगे सरका देगी, तो एक्चुअली बोट जाएगी यूं, वो जा रहा था यूं, लेकिन रिवर की वेलोसिटी उसको धक्का दे करके एक्चुअली उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। ठीक है, तो वो पहुंचेगा यहां पे। इसको कुछ टाइम लगा T1, तो इसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, मैं यहां चलता हूं। तो रिवर की वेलोसिटी ने उसको हेल्प करके यहां पहुंचा दिया। इधर पहुंचने में लगा उसको T2 टाइम। उसने कहा कि यार मैं तो सीधे ही चलने की कोशिश करता हूं, तो सीधे चलने की कोशिश करी, तो रिवर की वेलोसिटी के कारण वो सीधे भी नहीं जा पाया, वो यूं आया और यहां पहुंचा। यहां पहुंचने में लगा उसको T3। या फिर उसने बोला कि यार बहाव के उल्टा चलो ही क्यों, बहाव के साथ चलो और तेजी से चलोगे। तो उसने यूं चलना चालू करा, तो रिवर की वेलोसिटी ने उसको और धक्का दिया, तो वो बहुत तेजी से आगे को बढ़ा और यहां पे जाकर के पहुंचा। यहां से लेके यहां तक गया, लेकिन ये देखो, ये जो पाथ लिया उसने ये लंबा था लेकिन बहुत स्पीड में गया। ये जो पाथ लिया उसने ये थोड़ा कम लंबा था लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम थी। और ये जो पाथ लिया ये काफी छोटा था, T1 वाला, लेकिन इसमें इसकी स्पीड बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि ये बहाव के उल्टा जा रहा है। तो अब ये बताओ, क्या इन सारी चीजों से T1, T2, T3, T4, इन चारों में आपको कौन सा लगता है कि मिनिमम टाइम है? सर T4। T4 ऐसा लगता है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि भले T4 में ये स्पीड ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। उसी तरीके से T2 को देखो, स्पीड कम है लेकिन डिस्टेंस भी मिनिमम है। सो हाउ डू यू से कि कौन से केस में सबसे मिनिमम टाइम लगेगा? तो इसके ऊपर एक छोटा सा बहुत बेसिक सा एक प्रूफ दिया गया है और इसका आंसर है मिनिमम टाइम टू क्रॉस इज ऑब्टेन्ड
when the person steers the boat exactly perpendicular to the river velocity। यानी कि इस डिलेमा का आंसर है ये, जो यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा किया है मैंने कि आदमी को यों चलना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, या रिवर के साथ साथ बह जाना चाहिए जिससे कि ज्यादा स्पीड बन जाए उसके बोट की। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करा दे? द करेक्ट T1 सर, T1 सर 2 T1 द करेक्ट आंसर है, सुन लो, यही है कि उसको बोटमैन को कोशिश करनी है कि वो बोट की चोंच को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखे रिवर वेलोसिटी के। तो अब ये बताओ कि ये जो वेक्टर है ये वी बी है या वी बी ऑब्लिक आर है? ये देखो, द पर्सन स्टीयरिंग द बोट शुड कीप इट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर यहां को बन रहा है ये वी बी है या वी बी ऑब्लिक आर है? इट इज वी बी ऑब्लिक आर, क्योंकि आपको पहले ही मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि वी बी आर इज द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन स्टीयरिंग द बोट। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मिनिमम टाइम उसको क्रॉस करने में तब लगता है जब वो बोट को अपनी कोशिश से परपेंडिकुलर सीधा ले जाए, तो ये जो वेक्टर है ये वी बी ऑब्लिक आर है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम का वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा? या फिर आपसे अगर ये पूछा जाए, ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम फॉर अ रिवर बोट केस इन विच द बोटमैन इज केपेबल ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो ये देखो ऐसा बनेगा। रिवर बनाओ, रिवर की वेलोसिटी यहां लगा दो वी आर, और ये बोलो कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की कंडीशन क्या है? वी बी आर को सीधे परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, तभी वो मिनिमम टाइम में पहुंच सकता है। तो वो बोट की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हुई वो ये है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, बोट चलाने वाला कोशिश तो कर रहा है सीधे जाने की, लेकिन वो जा ऐसे रहा है वी बी की तरफ। तो बाहर खड़ा होकर एक आदमी देख रहा है कि यार ये बोट वाला कर क्या रहा है, तो वो देख रहा है कि वो बोट वाला एक्चुअली जा क्यों रहा है। लेकिन बोट वाले से पूछा, भाई तुम किधर जा रहे हो? तो बोल रहा मैं तो बिल्कुल सीधे जा रहा हूं साहब। बोट वाले को लग रहा है वो बिल्कुल सीधे जा रहा है, लेकिन रिवर उसको धक्का देते हुए यहां ले जा रही है। तो वो जाकर के उतरेगा कहां? पॉइंट 1 पे उतरेगा या पॉइंट 2 पे उतरेगा, ये बताओ। पॉइंट पर, कहां पे? 2 पर सर, 2 ऊपर सर। He will land at point 2. That is the correct answer. तो मिनिमम टाइम के चक्कर में अगर वो अपनी कोशिश ये करे कि बोट की चोंच को यों रखे, यों जा रहा है वो बोट, उसकी यों है, उसकी कोशिश है सिर्फ ये, यानी कि ड्राइवर की जो पर्सपेक्टिव है वो वी बी ऑब्लिक आर है। he has to try to keep the boat perpendicular, so VBR becomes in this direction। रिवर की डायरेक्शन को कोई चेंज कर नहीं सकता, वो तो यूनिवर्सल है, वो ऐसे ही चलेगी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है वी ऑब्लिक आर और वी आर का, वो वी बी बनेगा यों। तो कुल मिलाकर के मिनिमम टाइम में जब वो पहुंचेगा तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट बैंक पे नहीं पहुंचेगा, वो यहां पहुंचेगा, सेकेंड पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक बार ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने एक चीज तो सीख ली, वी बी, वी आर और वी बी ऑब्लिक आर के कॉन्सेप्ट समझ लिए। वी बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द बैंक। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर अगेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द बैंक। बोट वाले से नहीं पूछा आपने वी आर बी। वी बी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बोट एज एक्सपीरियंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ड्राइवर। बस इसको ऐसे याद रखो। हालांकि कायदे से तो इसका बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन तो ये होना चाहिए कि रिवर में एक आदमी को उतार दो और उससे पूछो कि बोट की वेलोसिटी क्या है, वो होना चाहिए वी बी ऑब्लिक आर। लेकिन आपके लिए बेहतर ये होगा कि बोट चलाने वाला किस दिशा में बोट को ले जा रहा है, वो दिशा वी बी आर की है। ये याद रखना ज्यादा बेहतर है। सर याद रखना तो बेटर है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? यही तो बताया ना, इसको ऐसे ही तो समझ लिया ना आपने।
क्या समझना रह गया, चलो बताओ, आपका डाउट बताओ, क्या इसमें तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन ये है कि अगर अपन रिवर में देख रहे हैं, वो है? बोटमैन जो चला रहा है, तो हम्म। बोटमैन को कैसे पता चल रहा है कि मतलब ये VBR है? उसको किनारों के रेस्पेक्ट में पता लग रहा है कि मैं किस दिशा में ले जा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ये रिवर है, अब बोट में बैठे आदमी के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बोट में बैठे आदमी को बोट की गति पता नहीं लगती, लेकिन दिशा तो पता लगती है। समझ में आ रहा है ना, दिशा तो पता यस। लगती है। तो अब बोट चलाने वाला अगर यहां से चालू करता है और यहां से चालू करते टाइम ही वो ऑपोजिट एंड पर एक झंडा गाड़ देता है और बोलता है कि मेरे को इस झंडे तक जाना है, तो वो अपनी बोट का डायरेक्शन इस झंडे की तरफ करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो पहुंच नहीं पाएगा उस झंडे तक। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि जिस दिशा में वो चला रहा है, और रिवर उसको किधर तक पहुंचा देगी, इस झंडे पे नहीं पहुंचाएगी, वो उसको यहां पहुंचाएगी। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो VBR जो है, इसको इस तरह से समझो कि बोट चलाने वाले को बोट की चोंच दिख रही है और उसको टारगेट दिख रहा है, तो वो उस चोंच को, बोट की चोंच को जिस दिशा में मोड़ता है, वही दिशा VBR की है। बस इतना सा समझ लो आप, तो क्लियर हो गया। नहीं सर। अच्छा बताओ क्या कंफ्यूजन है, अभी क्या कंफ्यूजन हुआ? की बात हो गई है, तो मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में कैसे पता चल रहा है उसको, ये कंफ्यूजन है ना? नहीं, उसको रिवर के रेस्पेक्ट में ये नहीं पता लग रहा। बस ये देखो, ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्टिकल बार्स? मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड। ये नहीं पता लग रहा उसको बस, ठीक है। और ये आप अपने वेक्टर इक्वेशन से निकाल लोगे, या फिर ये दे रखी होती है। और ये देखो, ये कैसे निकलेगा? इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द वेलोसिटी ऑफ बोट व्हेन रिवर इज नॉट फ्लोइंग। समझ में आ गया ना? अब ऐसा क्यों, यानी कि स्टिल वाटर में, अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई बोट को एक नदी में मत उतारो, एक तालाब में उतार दो, ये तालाब है, तालाब में पानी बहता नहीं है, ये आपको भी पता है, खड़ा रहता है। अब आपकी वही बोट अगर इस तालाब में आ जाए और उससे बोले कि भाई अब तू चला तालाब में, तो जो वेलोसिटी होगी बोट की वो VB है, और रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक है, तालाब में है अभी वो। तो ये जो वेलोसिटी है बोट की खड़े पानी में, वो VB/R है, यानी कि रिवर चल नहीं रही। यही यही बात हो गई ना, कि रिवर की वेलोसिटी को 0 कर दो तो बोट की वेलोसिटी कितनी होगी? वो VB/R होगी। तो इसको इस हाँ। तरीके से भी समझ सकते हो। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अपन इसके कुछ प्रॉब्लम्स जब ज्यादा सॉल्व कर लेंगे, एक दो प्रॉब्लम मैंने लिए हैं, तो उससे आपकी क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। अभी तो आप ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं कर पाओ इसके आगे वाली। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? लेकिन सर रिवर में तो R0 नहीं है ना? नहीं, रिवर में R0 नहीं है, इसलिए ही तो अपन वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं ना। अब जब आपने रिवर में उतार दी तो VB/R क्या है? अब बोट वाला जो है वो बोट के अंदर खड़ा है, और बोट खुद रिवर की वेलोसिटी से चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है, ये बताओ, है हाँ कि नहीं? सर। अच्छा, अब आप ये एक सीन इमेजिन करो, इससे शायद आपको क्लैरिटी आ जाए कि रिवर में बोट को रख दिया, बस बोट चल नहीं रही, बस बोट वाला और बोट रिवर में रख दिया आपने, तो बोट की वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ? जो रिवर की वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी ही होगी जो रिवर की वेलोसिटी है। अब उसके बाद उसने इंजन चालू कर दिया, अब वो चलने लग गया, तो अब जो उसको वेलोसिटी दिखेगी, बोट का चोंच जिस दिशा में जा रहा है, क्या वो ऑटोमेटिकली VB/R नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि उसको वेलोसिटी ऑफ रिवर तो उस आदमी की और बोट की ऑलरेडी है ही, लेकिन अब वो रिवर की वेलोसिटी के साथ साथ में अपनी एक वेलोसिटी भी लगा रहा है। तो बेसिकली रिवर की वेलोसिटी से तो वो आदमी चल ही रहा है, तो यानी रिवर की वेलोसिटी जब रिलेटिवली देखेगा तो रिवर की वेलोसिटी 0 मानेगा वो। और अब जो वो बोट की चोंच देखेगा किस दिशा में जा रही है, तो वो रिलेटिवली देखेगा। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत हुआ सर। हाँ, है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इवन मैंने जब इसको आपको पढ़ाने के लिए इस टॉपिक्स को किताबों में से देखा, तो मैं खुद भी अच्छी तरह से कंफ्यूज हो गया था। आई कुडंट मेक आउट बिटवीन VB एंड VB/R।
ये चीजों के बीच में मैं खुद भी कंफ्यूज था। बट एनीवे अपन एक आध क्वेश्चन लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसा मैंने कहा कि रेन और साइक्लिस्ट वाला लोगे और रिवर और बोट वाला लोगे तो इसमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि बोट जब चल भी नहीं रही होगी तो वो रिवर की वेलोसिटी से चल रही है बोट, यानी कि बोट में ऑलरेडी रिवर की वेलोसिटी मौजूद है। फिर जब बोट चलना चालू होती है एक्चुअली अपना इंजन स्टार्ट करके, तो आदमी को क्या दिखता है कि वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो वी बी ऑब्लिक आर दिखती है। और वी बी क्या चीज हुई फिर ये कुल मिलाकर के, वी बी हुई कि बाहर खड़े आदमी को क्या दिखता है, बोट कैसे जा रही है, तो उसको रिवर की वेलोसिटी और वी बी ऑब्लिक आर का रिजल्टेंट दिखता है बाहर खड़े आदमी को, और वही है वी बी। ठीक है, अभी अपना टाइम एक्सेस हो गया है, बट वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन द नेक्स्ट क्लास। इसके 2 प्रॉब्लम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, 2 नहीं तो 3 ले लेंगे अपन, until and unless you feel confident, and after that we will continue with the further topics. एक बार आप होल्ड कीजिए, आई विल टेक योर अटेंडेंस।